hello and welcome back in this one short series. As you all know that at the time of telling you that I will be soon starting off with a new series which is one shot, here I am with another most important and interesting series for you guys so that acing IELTS examination becomes effortless for you. So here I am, and today we are going to talk about one of the most important module yet a bit complicated, which is IELTS listening module. So yes, let's get started without wasting any further time. But before, I would like you guys to see this over here. The more you listen, the more you learn. The more you learn, the more you grow. This is a motivational quote that says the more you listen, the chances for you to grow and learn becomes higher and higher. It is really very important to listen. That is the reason I am here, which ensures that you need to listen more when it comes to your IELTS examination. And this is the ultimate mantra in order to ace the listening section of your IELTS examination. So without wasting any further time, there you go, and today we are going to talk about the topics we will be covering. So if you are a beginner out here, you don't have to worry about whether you need to learn already or is it something that you already need to know. It's nothing like that. I am going to start from the zero and we will be moving ahead. With respect to all the question type, with respect to all the modes, smallest tips and tricks that's going to help you in order to ace your examination. And of course, last but not the least, practice is the key to success. And that is what we will be doing at the end of the session. So now let's get started and let's see what other topics we will be covering today for you guys. First of all, it's very important for you to understand what exactly a listening module is and what other things we will be covering today. Talking about introduction of listening, modes of examination, format of examination, common mistakes to avoid, practice, and many more things I have got you covered for today's session. Now, grab your pen and paper and sit in front of the screen so that you need to take your notes, though I am already going to annotate it over here, but still, for your benefit, whatever suits best for you, you can make a note of it. So yes, let's get started. Before moving ahead, I would like you guys to know about listening, what exactly a listening module is, क्या होता है, and how we are going to move forward to have a solution to the problems and the question with respect to each and every question type. ठीक है? चलो. Now, overview of IELTS listening module. Duration is 30 minutes, which is 10 minutes transfer in paper-based test and 2 minutes for computer-based test. Okay. So basically, the IELTS listening module, the timing that has been allocated is 30 minutes. So 30 minutes के लिए आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी and then once the audio stops and again like at the time the audio is going on, you can write on your answers into the answer sheet or whatever mode you have chosen. That audio can be in various accents. It can be in American accent. It can be in British accent. It can be in Australian accent. It can be in Nigerian accent. And it can be in Arabic accent. These are the most important accents that you can encounter. And of course, etc. There can be many more accents. Again, I am not committing on that. These are the only accents that you are going to encounter. Now, talking about further. Time duration that is being given to you is 30 minutes. And yes, the actual time duration for the audio is going to be 30 minutes only. Now,
ये जो हमने एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लिखा है, एक्स्ट्रा 2 मिनट्स लिखा है, व्हाट्स दैट फॉर? टॉकिंग अबाउट, देखो आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं वो 2 मोड में होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मोड, जस्ट फॉर यू, हियर इट इज। पहले इसको समझो, हमारे पास एक मोड होता है दैट सेज पेन पेपर बेस्ड टेस्ट, व्हिच इज PBT in IELTS, and in this mode you will get a booklet. Basically आपको एक मिलती है बुकलेट। देखो आप सबने बोर्ड एग्जाम्स दिए होंगे, ठीक है, आप सबने बोर्ड एग्जाम्स दिए होंगे, आप सबको पता है बोर्ड एग्जाम के पेपर्स कैसे आते हैं, एक बुकलेट सॉर्ट ऑफ में आते हैं, ठीक है। इट्स लाइक बेसिकली a compilation of 4 to 5 pages that only and only includes question. एग्जैक्टली वैसे ही आपको बुकलेट मिलती है इन योर IELTS एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ आपको मिलता है एक आंसर शीट, ठीक है। वो आंसर शीट समवॉट OMR शीट जैसा दिखता है, समवॉट OMR शीट जैसा दिखता है। दैट आंसर शीट is going to be somewhat like this. चलो तो मैं ये भी बता देती हूँ how that answer sheet is going to look like for you guys, ठीक है। देखो that answer sheet is going to be like this, somewhat like this, ठीक है। and यहाँ पे till here they have some, यहाँ तक आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी होती है, and this page is bifurcated into 2, ठीक है। Now talking about the further thing, what we can encounter is, यहाँ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ आपके जाती है पर्सनल इंफॉर्मेशन, वट एवर योर टेस्ट सेंटर इज, वट इज योर नेम, वट इज योर रोल नंबर और वट एवर इज बीइंग गिवन, ठीक है। यहाँ आपकी जाती है पर्सनल इंफॉर्मेशन। टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन अकाउंट्स फॉर आंसर्स, ठीक है। दिस सेक्शन अकाउंट्स फॉर योर आंसर्स। अब आंसर की बात करूं तो यहाँ पे अगेन देयर इज अ बाइफिकेशन ऑफ वन लाइन लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। अब आपको एक ऐसे करके लाइंस मिलती हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने आंसर्स लिखोगे लाइक दिस। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक रूल्ड आंसर शीट दैट यू विल बी रिसीविंग, ठीक है। ये आई नो थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ कर देना, ठीक है, होनी तो नहीं चाहिए बट स्टिल। या somewhat very close, ठीक है। चलो done and there you go, ठीक है। now talking about further, तो ये जो आपके आंसर शीट है यहाँ पे आपको नंबर दिए रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Again, kindly excuse me because I didn't count the boxes. So yes, similarly यहाँ पे आपको रहेगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 and 40. कहने का मतलब क्या हुआ कि इन टोटल आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं दोज क्वेश्चंस आर 40 क्वेश्चंस,
ठीक है, इन टोटल आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर्टिकुलर टास्क में, ये समझ आया। अब ये जो आंसर शीट आपको दिख रही है यहाँ पे यू विल बी राइटिंग दी आंसर्स, ठीक है, यहाँ पे यू विल बी राइटिंग योर आंसर्स टिल 40 क्वेश्चन। अब इसी आंसर शीट में आंसर ट्रांसफर करने को आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलता है, आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलता है अपार्ट फ्रॉम दैट 30 मिनट्स, ठीक है, उसी आंसर्स को यहाँ पे इस आंसर शीट में ट्रांसफर करने को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ये जो 40 क्वेश्चंस है आउट हियर, ठीक है, ये जो 40 क्वेश्चंस है हमारे पास, इसको बाइफिकेट कैसे करें? तो इसको देखो, बाइफिकेट करने का तरीका है, आपको टास्क 1, टास्क 4 होते हैं, ठीक है, 4 टास्क होते हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड टास्क 4। ईच टास्क आपको 10 क्वेश्चन एलोकेट करता है, ईच टास्क आपको 10 क्वेश्चंस एलोकेट करता है। गॉट इट? या दीज आर द टास्क दैट यू कैन एनकाउंटर, ठीक है। ईच टास्क 10 क्वेश्चन, इन टोटल 40 क्वेश्चन, टाइम कितना? 30 मिनट्स। सॉर्टेड? चलो अब वापस से एक बारी पेन एंड पेपर पे आ जाते हैं, देखो इधर पे आ जाओ जरा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, you have to listen to the audio through the speakers in the exam hall. No headphones will be provided in PBT. Write answers on the question paper first and then transfer them to the answer sheet within 10 minutes. ठीक है? Use uppercase or lowercase letters but ensure correct spelling. Tip: if you are used to listening with headphones, practice listening through external speakers before the test. Now, one more thing, you are allowed pen paper based में to write the answers in block letters, ठीक है, to write the answers in block letters. Clear? Now, ब्लॉक लेटर्स में आंसर लिखना अलाउड होता है, क्यों? क्योंकि हैंड राइटिंग का इश्यू आता है, फॉर दैट रीजन दे अलाउ यू टू राइट द आंसर्स इन द ब्लॉक लेटर्स। तो आप जो भी आंसर्स लिखोगे यहाँ पे वो सारे ब्लॉक लेटर्स में होने चाहिए, याद रखना। अगर आप ये फॉर्मेट चूज करते हो तो अगर आपको ये करना है कि आपको नॉर्मल केसेस में लिखने हैं आंसर, फॉर दैट रीजन मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ द अपर केस एंड लोअर केस लेटर, ठीक है। अगर आपको अपर केस लोअर केस चेक करना है, उसमें आंसर्स लिखने हैं तो गो फॉर दैट, बट आपके पास ब्लॉक लेटर्स में भी आंसर लिखने के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लो एंड हैव अ क्विक स्क्रीनशॉट इफ यू गाइज वांट टू। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now let's move back. Let's move to another mode, which is computer based mode for your IELTS examination listening module. Now कंप्यूटर बेस्ड में क्या होता है? लिसन टू द ऑडियो थ्रू इंडिविजुअल हेडफोन्स, बेटर क्लैरिटी, लेस डिस्ट्रैक्शंस, टाइप आंसर्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन पेपर, हैव ओनली 2 minutes to review and correct your answers, no extra 10 minutes like PBT in IELTS. If you are taking the computer based test, practice typing quickly and accurately. अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जाते हो, so make sure you have good accuracy. You should be having good accuracy with good typing speed. Good क्या excellent ही समझ लो, क्योंकि it is really very important. क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसे? देखो, जब आप ऑडियो सुनते हो ना, you cannot afford to get distracted for even a minute. आप जहां डिस्ट्रैक्ट हुए वहां आपके 2 से 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे. So just be very careful at the time of when you are dealing with this question type. So it is really very important for you to make sure कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है with good accuracy.
अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी, डेफिनेटली यू आर एट लॉस ऑन द बैंड स्कोर. अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी, यू आर एट लॉस व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चन. सो आपके देयर आर चांसेस कि आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं. एंड बिकॉज द ऑडियो इज ओनली प्लेड वंस, नो रिवाइंड, नो पॉज, नो रिप्ले, नथिंग. So it is important to go for one shot listening, and that is going to enhance your answers. Clear? All good? Sorted? चलो आगे बढ़ते हैं. Now this is all about PBT and CBT. ठीक है. Again CBT में भी आपको पेपर मिलता है, पेन यू हैव टू कैरी एंड पेपर एंड पेन मिलता है सो दैट यू कैन जॉट डाउन द नोट्स. अगर आपको ऑफ कोर्स नोट मेकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो नोट मेकिंग करनी है, फॉर दैट रीजन आपको पेन एंड पेपर मिलेगा. पेन तो लाना पड़ेगा, पेपर मिलेगा. ठीक है, फॉर दैट रीजन. तो ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं कि मैम कंप्यूटर में कैसे कीवर्ड्स मार्क करेंगे, कैसे क्या करेंगे, परेशान मत होना, यू विल बी गेटिंग इट. ठीक है. ऑल्सो मेक श्योर कि जब भी आपको आंसर सुनाई दे आप देन एंड देयर लिखो. वो जो लास्ट के 2 मिनट्स मिल रहे हैं वो आपको रिव्यू करने के लिए मिल रहे हैं, आंसर ट्रांसफर करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, वो रिव्यू करने के लिए मिल रहे हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफरिंग ऑफ आंसर्स एंड रिव्यूइंग ऑफ आंसर्स. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर पार्ट. नाउ आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा, मोड्स ऑफ आइल्स लिसनिंग क्लियर हो गया होगा, विच इज पेन पेपर बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड. अब बात करते हैं फॉर्मेट एंड सेक्शन की. अभी जो मैंने 4 टास्क के बारे में बात करी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है. देयर आर the listening test. How many sections? There are 4 sections in the listening test. अब उसको आप सेक्शन बुला लो, टास्क बुला लो, जो बुलाना है बुला लो, टोटली योर टेक. आपको जो समझ आए वो यू कैन कॉल. ठीक है. चलो नाउ section 1 counts for conversation in a social setting. Section 1 counts for conversation in a social settings. Section 2 is a monologue on a general topic. Talking about 3, which is a conversation for academic and training context. And section 4 is academic lecture or speech. Remember that the audio will be played only one time. And this is something that I have already told you. ठीक है. चलो आगे बढ़े जाए. ऑल गुड, ये समझ में आ गया. मैंने ये भी बताया है कि हर सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. दैट विल बी अकाउंटेड फॉर इन टोटल 40 क्वेश्चंस. वापस से बता दे रही हूं. ठीक है, 40 क्वेश्चंस होंगे इन टोटल एंड ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 1 मार्क. ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 1 मार्क. ठीक है, चलो बढ़िया. ठीक है, इन टोटल तुम्हारे पास 40 मार्क्स हो गया, ये भी बता दिया. चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब इतना जब समझ में आ गया है, एक इंट्रोडक्शन आई गेस समझ में आ गया होगा. तो जब आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ ही चुका है, सो नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी विल बी डीलिंग विथ. ठीक है. अब देखो, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू माइट डील विथ. ठीक है. जब मैं बात करती हूँ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन की, तो कहने का मतलब है कि आपको एस करना है नॉट विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूल बट विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन टाइप. हमेशा याद रखना, अगर आपको इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आइल्स एग्जामिनेशन, मेक श्योर टू गो फॉर द क्वेश्चन टाइप. मेक श्योर टू गो फॉर एसिंग द क्वेश्चन टाइप. कि अगर मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतने क्वेश्चंस मिल गए तो आई विल बी एबल टू एस एनी काइंड ऑफ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाए मैं वो कर लूंगा या कर लूंगी. मैचिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट. मैप प्लान एंड डायग्राम लेबलिंग मिल जाए, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर. चलो नाउ talking about, first of all we've got multiple choice question. Okay, form, note, table, flowchart, summary completion, sentence completion question, matching information, plan, map, diagram labeling and short answer type question.
ये कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी कॉमन एंड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इन योर IELTS लिसनिंग मॉड्यूल। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नाउ कॉमन मिस्टेक्स बात कर लेते हैं। एक इंट्रोडक्शन हो जाए, कॉमन मिस्टेक क्या होता है। नॉट रीडिंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, वर्ड लिमिट मैटर्स। अभी देखो इस चीज के बारे में तो आई विल बी डीलिंग विद सिंपल अलग अलग से, ठीक है। Not using time to predict answer before the audio plays. Losing focus during conversation. Conversation के बीच में आप focus lose कर सकते हो, which is again a normal human tendency, but इसी की practice करनी है so that you do not lose the concentration. ठीक है? Writing answers while missing the next question. स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। ठीक है, चलो सबसे पहले पहली चीज की बात करते हैं, नॉट रीडिंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब बिफोर मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे, बट एक जस्ट बता दे रही हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। देखो जो भी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या हो सकता है, फॉर्म कंप्लीशन हो सकता है, टेबल कंप्लीशन हो सकता है, नोट कंप्लीशन हो सकता है एंड समरी कंप्लीशन हो सकता है, और यू कैन गो अहेड फॉर मैचिंग इन्फॉर्मेशन। नहीं, मैचिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि इन क्वेश्चंस में क्या ऐसा है जो आपको फोर्स कर सकता है टू लूज योर बैंड्स को। सो इन क्वेश्चन टाइप में क्या चीजें होती है, देखो इधर सबसे पहला होता है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस। देखो अगर हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की बात करें तो उसमें कैसे हमारा इंस्ट्रक्शन मिसमैच हो सकता है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ओके ना, इसमें एक इंस्ट्रक्शन आता है दैट सेज टू मेंटेन the word limit. ठीक है, that asks you to maintain the word limit. ठीक है, अब word limit के लिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या आता है पहले वो देख लो। देखो many a times they are going to ask you the very first kind of that I encountered was no more than 3 words। सबसे पहले तो ये देखो, अब इसमें देयर आर चांसेस कि आपको क्या करना चाहिए। देखो नो मोर देन 3 वर्ड्स बोला है, यू कैन राइट 3 वर्ड्स। ठीक है, आंसर में यू कैन राइट 2 वर्ड्स। ठीक है, एंड यू कैन राइट 1 वर्ड। ठीक है, ये चीज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है दैट गोज लाइक दिस। ठीक है, होल्ड ऑन, that says no more than 2 words and or a number। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या करना है। जब भी आपको ये आए कि नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, हमेशा याद रखना यू कैन राइट 2 वर्ड्स। ठीक है, पहले तो वर्ड लिमिट की बात करते हैं। 2 वर्ड्स बोला है, हम 2 वर्ड लिख सकते हैं, हम 1 वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या चीज है, एंड और अ नंबर। एंड का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, एंड का मतलब होता है एडिशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रही हूँ। और का मतलब होता है ऑप्शन।
एंड का मतलब होता है एडिशन, एड और का मतलब होता है ऑप्शन। तो आप दो वर्ड या तो एक नंबर लिख सकते हो, दो वर्ड एंड और अ नंबर, ठीक है, और आप वन वर्ड और वन नंबर लिख सकते हो, ठीक है, ये तो हो गया ऐड। अब बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल आपके आंसर में वर्ड ही नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो आप ओनली नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस केस में मान लो हम कहते हैं नंबर नहीं है, सिर्फ वर्ड है, तो आप ओनली वर्ड भी लिख सकते हो। दिस इज व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन टॉक्स टू यू अबाउट। क्लियर? समझ आ रही है बात? क्लियर? चलो, ये हो गया। अब एक और इंस्ट्रक्शन आता है दैट सेज नो मोर देन 3 words and or 3 words or no more than 3 words or numbers। अब यहाँ पे ध्यान देना, अ नंबर लिखा है कि नंबर्स लिखा है। Why? Because in this case you can write again 3 words, 2 words, 1 word, ठीक है। और इसके साथ साथ अब क्योंकि यहाँ पे नंबर्स लिखा है तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, इसके साथ आप as many numbers as you can write again, जितना आप चाहते हो उतना नहीं, जितना आंसर्स में है उतना। देयर आर चांसेस कि आपको मल्टीपल नंबर्स भी मिल सकते हैं, जैसा कि हम डेट ऑफ बर्थ के सिनेरियो में एनकाउंटर करते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सिनेरियो में आप एनकाउंटर करते हो। फॉर एग्जाम्पल 27th of May 1993, ये केस आ गया। ये इन दिस केस यू कैन एनकाउंटर 2 नंबर्स आउट हियर, जिसके वजह से आप ये वाला केस सिनेरियो ऑप्ट कर सकते हो। ये इंस्ट्रक्शन आपको वहां पे काम आएगा। हैव अ क्विक स्क्रीनशॉट इफ यू गाइज वांट टू। क्लियर? ऑल गुड? चलो, ये हो गया। ये इस पे ध्यान देना स्पेसिफिकली, ओके। चलो, now let's move ahead and let's talk to you about the another thing। ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लिमिट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में मेजरली आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट वाज द सेकंड पॉइंटर, नॉट यूजिंग टाइम टू प्रिडिक्ट आंसर बिफोर ऑडियो प्लेज। एक बार यहाँ पे एक और चीज देख लो। चलो, ये हो गया। अब नॉट यूजिंग टाइम टू प्रिडिक्ट आंसर मतलब क्या है इसका? कहने का मतलब है कि आपको टाइम तो मिलेगा। टाइम कैसे मिलेगा मैम? ठीक है, देखो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 क्वेश्चंस होते हैं, राइट? ठीक है, तो अगर मैं टास्क 1 की बात करूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे टास्क 1 की बात करूं दैट कंटेन्स ऑफ 10 क्वेश्चन, तो एवरी नाउ विथ एवरी तो नहीं लिखूंगी, बिफोर एवरी 5 क्वेश्चंस, बिफोर एवरी 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स। एक अज्यूम्ड टाइम है ये, दिस इज अ टेंटेटिव एंड अज्यूम्ड टाइम। 30 सेकेंड्स यू गेट फॉर व्हाट? फॉर रीडिंग द क्वेश्चन, फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। किसके लिए मिलते हैं? रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, इसके लिए मिलते हैं। क्लियर? अब आपको क्योंकि 30 सेकेंड्स मिलते हैं तो मेक श्योर उन 30 सेकेंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। क्यों? क्वेश्चन पढ़ने में, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिफोर एवरी 5 क्वेश्चन, ये आपका कैरी ऑन होता है टिल टास्क 4।
टास्क 4 में क्या होता है कि आपको वही जो 30 सेकेंड 5 क्वेश्चन के लिए मिल रहे थे, नाउ बिफोर you that 30 second will be before 10 questions, you will be getting 30 seconds to read and understand the question. यहाँ पे ये चीज थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, which is again important for you to make sure enhance your reading skill, enhance your reading skill. क्लियर? ये आपके सिर्फ लिसनिंग का ही टेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपके रीडिंग का भी टेस्ट हो रहा है. गॉट इट? क्लियर? ऑल गुड? हैव अ क्विक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू. नोटेड? चलो, लेट्स मूव अहेड. Okay, now talking about, hold on, क्या था? Not using, ठीक है. Losing focus during conversation, ठीक है. Writing answers while missing the next question, spelling, grammar errors, ठीक है. Okay, ये तो हो गया. So I have told you about the instruction, I have told you about the time management. Instruction में देखो एक और केस सिनेरियो आता है जब आप MCQ सॉल्व करते हो. तो MCQ सॉल्व करते टाइम पे देयर इज एन एक्सेप्शनल केस जहाँ पे आपको MCQ में एक आंसर चूज करने के बजाय दे माइट आस्क यू टू गो फॉर 2 आंसर्स एज वेल. ये भी एक एक्सेप्शनल केस होता है जो कि इंस्ट्रक्शन में मेंशन होता है. अगर ऐसा कुछ भी होगा चेंज, आपको इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाएगा. यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, चलो ये हो गया. अब या तो ये हो गया, अब एक बार ही देख लेते हैं और हमारे पास क्या बचा है. सो यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिसहर्ड वर्ड्स एंड ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन. बट एक बारी बस बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्वर्जेशन एंड लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स एंड देन क्वेश्चन पार्ट्स के बाद स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, फिर प्रो टिप्स के बारे में बात करेंगे एंड आई विल बी गिविंग यू ऑल द प्रो टिप्स. परेशान नहीं होना बाय द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है, जस्ट बी वेयर देयर, जस्ट स्पेयर विद मी फॉर द एंटायर सेशन. Now this part, okay, talking about part 1 conversation in everyday context, this part features a dialogue between two speakers in a daily life situation such as booking a hotel room, making an appointment or asking for an information. कंटेक्स्ट क्या होता है? इनफॉर्मल एंड इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्वर्सेशन. ये हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 में, विच इज 1 to 10 सिनेरियो समझ लो या 1 to 5 सिनेरियो समझ लो, जिसमें वी आर गोइंग टू गेट 10 क्वेश्चंस. ठीक है, 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. दिस इज व्हाट द सिनेरियो इज. इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एक डायलॉग डिलीवरी मिलती है बिटवीन 2 पीपल वे दे कैन बी फोकसिंग ऑन एनी ऑफ द कॉन्वर्सेशन रेंजिंग फ्रॉम बुकिंग एन होटल, booking a hotel and sharing an information and asking for an appointment, or these are the things that might be possibility. ठीक है, might be the possibility. अब बात करते हैं स्पीड एंड एक्सेंट. स्पीड एंड एक्सेंट कैसा होता है? इसमें स्लो होता है, क्लियर प्रोनाउंसिएशंस होती है एंड फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है. एक बार ही जब किसी ने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर किया है, सामने वाला पर्सन उसको रिपीट भी करता है इन ऑर्डर टू क्रॉस चेक. एंड मेनी अ टाइम्स क्या, ऑलवेज आपको यहाँ पे बाइफर्केटेड स्पेलिंग मिल जाती है. बाइफर्केटेड स्पेलिंग्स मिल जाती हैं. ठीक है, स्पेलिंग्स मिल जाती हैं. डिटेल्ड प्रोनाउंसिएशंस भी मिल जाते हैं कभी कभी, which makes it easier for you to answer the question with 100% accuracy. Yes, 100% accuracy. Common topics क्या होते हैं? Making a reservation for hotel, restaurant, transportation, asking for information for library, gym, tourist office, filling out forms like address, phone number and date of birth. So basically ये मिलता है आपको, questions मिलेंगे जिसमें आपको questions आते हैं. इनमें जो question types most probably आते हैं, they are known as form completion. ठीक है, ये होता है आपको majority of the time पे जो question आते हैं ना, ये वाला question आता है, that is form completion. ठीक है, चलो शुरू करें, आगे बढ़े. Now
सो ये होता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, ये एक पार्ट होता है, पार्ट 1 होता है। एक बार इसको देख लो, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर अ रियल क्विक, ठीक है। ये होता है फॉर्म कंप्लीशन, एंड देन इसमें आपको मेजोरिटी ऑफ टाइम पे 2 लोग मिलेंगे जिनके बीच में डायलॉग डिलीवरी होगी। Those people are going to talk about the reservation, they are going to talk about the appointment and information, जिसमें they might be asking for certain information, certain personal information के बारे में पूछेंगे because they are making a reservation for an hotel or restaurant, and then asking for an information for a library, gym or tourist guide, tourist office, and filling out the form. So yes, form completion is like basically based on this kind of questions only, ठीक है। तो ये होता है आपका पार्ट 1 में। पार्ट 1 आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। चलो एक बारी आगे बढ़ जाते हैं एंड एक बारी पॉसिबल क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं एक बारी जो होता है हमारे पास पार्ट 1 में, विच इज फॉर्म कंप्लीशन, फिलिंग इन पर्सनल डिटेल्स होता है। अभी मैंने आपको वही सेम चीज बताई थी जिसमें हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे नेम, फोन नंबर, ईमेल, प्राइस, ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को कहीं घूमने जाना है, दे आर टेकिंग अ ट्रैवल पैकेज, तो उसके हिसाब से दे आर गोइंग टू शेयर सम डिटेल्स कि आपको क्या है, पैकेज लेने के लिए आपको अपने ये देने डिटेल्स देने पड़ेंगे, उनके प्राइसेस क्या है। अगेन देयर आर हाई चांसेस, अब ठीक है चलो उसको बाद में बताएंगे, बट अभी बात करते हैं क्वेश्चन टाइप्स की। नोट टेबल कंप्लीशन हो सकता है, एक्सट्रैक्टिंग की आइडियाज, फॉर एग्जांपल टाइम टेबल, कॉस्ट, अपॉइंटमेंट डिटेल्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन। ऑफ कोर्स वर्ड लिमिट आपको ऑफ कोर्स दी जाएगी बिकॉज आपको इसमें इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। दीज आर द पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन टाइप, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन फिल इन करना होता है। फॉर दैट रीजन आपसे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन व्हाट वाज हर्ड, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन व्हाट वाज हर्ड, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू मेक श्योर, ठीक है। क्लियर, ऑल गुड, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, ओके। टॉकिंग अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मेजरली नहीं आता है पार्ट 1 में, बेसिकली नहीं आता है, नहीं कि नहीं आता है, मतलब ऐसे ही समझो। फॉर्म कंप्लीशन आई कैन गेट इट, नोट टेबल कंप्लीशन थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ, बट एमसीक्यू मेजरली आपको पार्ट 1 में कभी नहीं देते, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज द टिप्स फॉर पार्ट 1, टिप्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द टिप्स फॉर पार्ट 1? फोकस ऑन नंबर्स, स्पेलिंग्स एंड एड्रेसेस, ठीक है। दे आर ऑफन स्पेल आउट द नेम्स एंड नंबर। देखो मेजरली वो क्या करते हैं जब कभी भी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो मेनी टाइम्स व्हाट दे डू इज दे टॉक टू देम अबाउट देयर फर्स्ट नेम एंड सरनेम के बारे में बात करते हैं। क्योंकि वो फर्स्ट नेम और सरनेम के बारे में बात करते हैं तो वो दे टेंड टू कम अप विद द स्पेलिंग्स एज वेल एंड मेनी अ टाइम्स। फॉर एग्जांपल देखो एक सिनेरियो बता दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल किसी का वॉलेट खो गया है, ठीक है। they are calling to the police station and they are filing a complaint against the thief and all that। तो in that case ना उन्हें कंप्लेंट नंबर मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है ये जो नंबर्स होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, लाइक 4 नंबर से भी बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल 15 नंबर्स के भी हो सकते हैं, 16 नंबर्स के भी हो सकते हैं एट टाइम्स। तो ये भी चीजें आती हैं। For that case you need to listen clearly। एक भी नंबर इधर से उधर हुआ आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। अगर वो उन्होंने बोला 1 5 2 7 8 9 4 6, वो जो भी आगे वो बोल रहे अगर 6 नहीं समझा या 4 नहीं, 4 के जगह पे कोई और नंबर लिख दिया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी एट लॉस विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये चीज याद रखना। तो फोकस ऑन नंबर्स, स्पेलिंग्स एंड क्या हो गया, एड्रेसेस। They often spell out names and numbers. Now watch out for self corrections. Watch out for self correction. For example, my number is, see again here you have to pay attention. 5 6 4 7 8 9. Oh sorry, 5 6 4 7 9 9. These can be the scenario as well, जिसको हम कहते हैं self correction scenario. These kind of questions or these kind of scenario are basically used as a distractors for you guys.
ध्यान रहे, डिस्ट्रैक्टर्स से बहुत 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 ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है. मेनी टाइम्स दे आर गोइंग टू चेंज द इंफॉर्मेशन टू विच यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि डिस्ट्रैक्टर से सावधान रहना. नेक्स्ट वन इज पे अटेंशन टू सिनोनिम्स, फॉर एग्जांपल इनएक्सपेंसिव इंस्टेड ऑफ चीप. ठीक है, अगेन पैराफ्रेजिंग. एक चीज, ये चीज मान के चलो कि पूरे आईएलटीएस के एग्जामिनेशन में, नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मॉड्यूल, पैराफ्रेजिंग एंड डिस्ट्रैक्टर्स, ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जो आएंगे ही आएंगे, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये आएंगे ही आएंगे. पैराफ्रेजिंग इज अ मस्ट, डिस्ट्रैक्टर्स इज अ मस्ट. इट्स जस्ट दैट यू हैव to be a bit, you know, familiar with your entire content. You have to be a bit familiar on कि इस वर्ड का क्या पैराफ्रेज हो सकता है. यहाँ पे ये जो वो मिस उन्होंने करेक्ट किया है अपने आप को, कभी कभी दे माइट गिव यू अ सिनेरियो. अब जैसे कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लिखा है करंट मेंबर्स. अब ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे टेबल कंप्लीशन के क्वेश्चन में होता है. उन्होंने लिखा है करंट मेंबर. अब उन्होंने करंट मेंबर में लिखा है और ऑडियो में वो कह रहे हैं कि पहले उनके पास 20 मेंबर्स थे, 20 से 50 हो गए और अब वो सोच रहे हैं कि वो 50 से 100 मेंबर्स पे कन्वर्ट करें. अब यहाँ पे इस फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखना है. फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 20 मेंबर्स थे पहले, अब क्या हुआ 50 हो गए, अब वो सोच रहे हैं कि 100 पे कन्वर्ट करेंगे. दे आर थिंकिंग. तो मतलब 100 इज अ फ्यूचर नंबर, 20 इज अ पास्ट नंबर. हमारे पास जो अभी करंट नंबर ऑफ मेंबर्स है वो हुए 50 मेंबर्स. ये चीजों का ध्यान देना है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो हमारे पास पहले कितने मेंबर्स थे, 20 थे, और बाद में वो क्या कर रहे हैं कि वो उनको 100 मेंबर्स पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिसपे अभी हमारे पास है 50 मेंबर्स. तो हमारी क्या हुआ, 50 हमारे पास करेंट नंबर ऑफ मेंबर्स बच रहे हैं. ठीक है, ये समझ आई बात. अब बात करते हैं कि बाद में क्या है, व्हाट आर द अदर टिप्स दैट वी कैन हैव. अब देखो पॉसिबल क्वेश्चन टाइप्स पार्ट 1 में ले लेते हैं, जैसे अभी तो मैंने बताया ही था ऑलरेडी. फॉर्म कंप्लीशन, अगेन नोट कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप नहीं आएगा. अगेन अब बात करते हैं हम. ठीक है, सो व्हाट आर द टिप्स फॉर okay, tips for part 1, focus on number, spelling, addresses already covered for you guys. Now let's talk about the part 2 thing. part 2 में क्या है, part 2 में क्या क्या चीजें होंगी. part 1 में इंट्रोडक्शन था, मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीजों को बारे में ध्यान देना है. वो बेसिकली डायलॉग डिलीवरी होती है, दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होती है. part 2 की बात करते हैं. part 2 में भी सेम आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. पार्ट 2 में भी आपको कितने मिलते हैं, पार्ट 2 में भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं. तो क्योंकि 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑफ 1 मार्क. ये चीजें याद रखना. ठीक है, अब बात करते हैं पॉसिबल क्वेश्चन टाइप्स. पार्ट 2 में क्या हो सकते हैं. सबसे पहले देखो, मैप, प्लान एंड डायग्राम लेबलिंग, आइडेंटिफाइंग प्लेसेस ऑन द मैप बेस्ड ऑन स्पोकन डायरेक्शंस. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग क्वेश्चन. To be very honest, map, plan and diagram labeling is one of the most important in scoring. मेरे हिसाब से ये scoring इसलिए होता है क्योंकि easy होता है. अब बोलोगे मैम ये easy नहीं होता है, बहुत ज्यादा complicated होता है. And these are the things I know I'm gonna encountered from those people who have already appeared for the examination या जो already practice कर रहे हैं. No doubt in that, but आप लोग गलत नहीं बोल रहे हो. But there is a proper strategy. हमेशा याद रखना, चाहे वो IELTS listening हो, चाहे वो IELTS reading हो, चाहे वो राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, हर क्वेश्चन टाइप के लिए, अलग अलग क्वेश्चन टाइप के लिए देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो बनी हुई है. ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो. देखो इफ दैट इज वर्किंग फॉर यू. अगर वर्क नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. I'm not asking you to force think on something. It's like, look, आगे एक स्ट्रैटेजी उठाओ, उसको सॉल्व करो. होता है सॉल्व टाइम पे, एक्यूरेसी के साथ, गो फॉर इट. नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फोर्स नहीं करना है किसी चीज के लिए. एंड इफ दैट इज नॉट वर्किंग, हम कोई और स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे. तो इट्स लाइक गो फॉर दैट वन स्ट्रैटेजी. क्वेश्चन पे क्वेश्चन इज तो कर लोगे. अब देखो हर क्वेश्चन का ना पैटर्न भी अलग होता है, बिकॉज यू गाइज आर डीलिंग विद इंग्लिश. इंग्लिश मतलब अगेन इट्स अ लैंग्वेज इवेंचुअली. ठीक है, तो लैंग्वेज में थोड़ी बहुत ऊंच नीच या फ्लक्चुएशन चलती रहती है. एंड अगेन नीदर मी नॉर एनी ऑफ द एग्जामिनर इज डिमांडिंग यू फ्रॉम ऑफ अ परफेक्ट आंसर. कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपको परफेक्ट आंसर लिखनी है, परफेक्ट इंग्लिश लिखनी है शेक्सपियर जैसे. डेफिनेटली नॉट. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, गलती हो सकती है, चांसेस है, फेयर इनफ. लीनियंसी थोड़ी
रखी जाती है, इसको याद रखना। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू हैव टू कम अप लाइक परफेक्ट विद नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है। अगेन IELTS एकमात्र एग्जामिनेशन जहां पे आपसे किसी पर्टिकुलर इंग्लिश की उम्मीद नहीं करी जाती है। देयर आर अदर प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन जहां पे अगर आपने चूज कर लिया अमेरिकन इंग्लिश और आपने ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स लिख दिए तो योर बैंड्स और द स्कोर्स विल बी डिडक्टेड। यस, ये भी होता है, बट IELTS एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे अगर कलर की स्पेलिंग आप COLOUR या COLOR लिखोगे, दोनों में से कोई भी लिखोगे तो वो सही ही मानी जाएगी। गेट इट? दिस इज व्हाट द फ्लेक्सिबिलिटी दैट IELTS प्रोवाइड्स यू। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन, कनेक्टिंग स्टेटमेंट टू स्पीकर्स ऑन टॉपिक। ठीक है, नोट एंड फ्लो चार्ट, टेबल कंप्लीशन, एक्सट्रैक्टिंग की डिटेल्स फ्रॉम द मोनोलॉग, नोट फ्लो एंड टेबल कंप्लीशन इसमें भी आ सकता है। अब देखो बात ये आती है कि मैम ये सारे क्वेश्चन तो हर सेक्शन में आते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में? तो देखो कॉमन क्वेश्चन ये होता है, मैप अगर आ जाए, मैप आता है बेसिकली, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैचिंग इन्फॉर्मेशन भी आता है, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के चांसेस थोड़े कम है, एंड इसके भी चांसेस थोड़े कम है आई वुड से, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे इन दोनों के चांसेस थोड़े ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको एनकाउंटर हो सकते हैं इन योर IELTS लिसनिंग। ठीक है, ये चीजें होती है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, विच इज टिप्स फॉर पार्ट 2। पे अटेंशन टू द डायरेक्शन वर्ड्स, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, ऑपोजिट एंड सुपरमार्केट। देखो जब भी हम बात करते हैं मैप प्लान लेबलिंग की ना, अभी आई विल बी गिविंग यू वन बाय वन, अगर देखती हूँ, ठीक है, अगर इफ आई कैन गिव यू अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑन द मैप प्लान एंड लेबलिंग, डेफिनेटली आई वुड नो डाउट ऑन दैट पार्ट। Recognize keywords that indicate answer. For example, the event will be held on Sunday, not Saturday. ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग कीवर्ड्स दैट इंडिकेट्स आंसर्स। ठीक है, कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है। अब देखो कीवर्ड्स को आप ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर हम जब ऑडियो सुनने पे आते हैं ना तो हमारे लिए सारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगती है, हमें कुछ इररेलेवेंट नहीं लगता है अनटिल एंड अनलेस आप क्वेश्चन से फेमिलियर हो। वो लोग जो क्वेश्चन से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जिन्हें पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, उन्हें पता होता है कि उनके लिए क्या इररिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट है, बट टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, उनके लिए हर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगती है। फिर वो भागा दौड़ी के चक्कर में हाफ हैजर्ड मैनर में वो क्वेश्चंस भी देखते हैं, फिर वो ऑडियो भी सुनते हैं, फिर वो आंसर्स गलत करके चले जाते हैं। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाओ। वो जो आपको टाइमिंग मिलती है 30 सेकेंड्स की, वो इसलिए नहीं मिलती है कि आप टाइम पास करो, वो इसलिए मिलती है कि ताकि आप क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाओ, सो दैट यू डू नॉट लूज ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ द ऑडियो, राइट। चलो, हाईलाइट वर्ड्स रिलेटेड टू लोकेशन, नेक्स्ट टू, बिसाइड, एडजेसेंट टू, अभी इसको करेंगे आराम से। चलो पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, चलो ओके, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 3। अगेन इस पार्ट में भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, दैट गोज विदाउट सेइंग। ठीक है, 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये पार्ट होता किस चीज में, यहाँ पे देखो इस पार्ट की जो डिफिकल्टी लेवल है मैं बता दूं, पार्ट 1 की डिफिकल्टी लेवल, चलो मैं डिफिकल्टी लेवल भी मेंशन कर देती हूँ फॉर यू गाइज, सो दैट आपको एक आइडिया रहेगा व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू एनकाउंटर, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे ना फ्रॉम माई एंड। देखो पार्ट 1 की जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो ईजी होती है, ठीक है, सिंपली ईजी होती है, ईजी टू ईजी होती है, ईजी टू ईजी मान लो। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 2। वेयर इज पार्ट 2, कहाँ गया पार्ट 2, ये रहा पार्ट 2। चलो, इसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है, मैंने बताया था ये चीज, हाँ ठीक है, ओके। पार्ट 2 मोनोलॉग इन सोशल कंटेक्स्ट। ठीक है, चलो पार्ट 2 हो गया। इसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो होती है इजी, इजी टू इजी मान लो, हाँ इजी टू इजी होती है, क्या एट टाइम्स मॉड भी मान सकते हो, मॉडरेट। इसके चांसेस थोड़े कम है, मॉडरेट के चांसेस थोड़े कम है, इजी के ज्यादा होते हैं, ऐसे समझ लेना। ठीक है, टॉकिंग अबाउट पार्ट 3, तो पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो इसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो होती है इजी टू मॉडरेट, एंड इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके चांसेस कम होते हैं।
मॉडरेट के चांसेस ज्यादा होते हैं, इजी के चांसेस बहुत कम होते हैं पार्ट 3 में, आई एम टेलिंग यू पहले से ही। दिस पार्ट फीचर्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर स्पीकर्स। यहाँ पे पता है दिक्कत ही यही आती है कि दे गिव यू 2 to 3 स्पीकर्स, मतलब वो 3 से 4 स्पीकर आपको दे देते हैं, और जब वो 3 से 4 स्पीकर्स के बीच में जब वो ट्रांजिशन होता है ना, वो बस पता कर पाना इज अ बिट डिफिकल्ट, इज अ बिट मुश्किल फॉर यू। बाकी तो सब कोई दिक्कत नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम पे ये चीज होती है। और एक और चीज बता दूं, देखो जैसे जैसे आपके टास्क बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे थोड़ी एक्सेंट में इंप्रूवमेंट आती है, और थोड़ी पेस में भी चीजें पेस अप होती है, मतलब उनकी जो बोलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा पेस अप हो जाता है, उनका पेस थोड़ा तेज हो जाता है। अभी तक जो आपको पार्ट 1 में बहुत ही इजी पेस दिख रहा था, आराम से एक एक वर्ड आपको मिल रहा था, एक एक प्रोनाउंसिएशंस आपको मिल रही थी, वर्ड की स्पेलिंग्स मिल रही थी, वो चीजें यहाँ आते आते तक ना एकदम खत्म हो चुकी होती हैं, मतलब यहाँ तक तो आपको नहीं मिलेगा पार्ट 3 में मेजरली, तो वो थोड़ा पेस ज्यादा हो जाता है। और मेजोरिटी ऑफ टाइम पे ना वो जब तक वो पार्ट 3 में आते हैं, 4 में आते हैं, थोड़ा इररिलेवेंट डेटा ज्यादा देने लगते हैं। क्यों? एंड वन मोर थिंग, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो कभी कभी कुछ चीजें आपको विद रिस्पेक्ट टू ऑडियो भी मिल जाती है। तो ये नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन, मान लो 10 क्वेश्चन है आपके पास, 10 से 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन में ना आपको विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर सेम रहा है, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि 10वें क्वेश्चन में भी आपके आंसर का ऑर्डर सेम रहेगा, नहीं रहेगा। एंड यहीं पे गलती कर दोगे आप, इवन तो आपने सुना होगा आंसर, इवन तो आपको पता होगा आंसर, बट स्टिल आप वहां पे गलती कर देते हो, वहां पे आप गलती कर दोगे, आपको लगेगा कि वहां पे अरे ये क्या हुआ, एकदम से कुछ नहीं हुआ, बस पैराफ्रेज हुआ था जो कि आप पकड़ नहीं पाए। दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट आई थिंक दैट यू गाइस कैन एनकाउंटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, बात करें, चलो बढ़िया। टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो यहाँ पे पार्ट फीचर्स कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 or more speakers in an academic setting. The dialogue could be between student discussing a project or a professor giving a feedback to student. तो मेजोरिटी ऑफ टाइम पे जब आप पार्ट 3 में चीजें एनकाउंटर करते हो, तो वो चीजें आपकी ऐसी होती हैं कि आपको प्रोफेसर है, ठीक है, professor, they are talking to the students, they are taking feedback and giving feedback to the students, which is again a bit, I would not say कि थोड़ा difficult होगा, या it is going to be a bit like difficult इसलिए होता है क्योंकि फिर आप वो ट्रांजिशन नहीं कंट्रोल कर पाते हो, क्योंकि जब एक स्पीकर बोल रहा है दूसरे स्पीकर पे कन्वर्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। Clear? चलो, now talking about the context can be semi-formal discussion, often in university setting, speed and action, faster speech with interruption, paraphrasing and hesitation. Hesitation का मतलब देखो, जैसे जैसे आपका पेस तेज होता जाता है ना, वैसे वैसे आपको नेटिव स्पीकर्स की बहुत ही नेचुरल कॉन्वर्जेशन सुनाई देने लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से नेचुरल कॉन्वर्जेशन नहीं थी, नेचुरल कॉन्वर्जेशन स्टार्टिंग से थी, बट देखो आपने अगर इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, अगर आपको पता होगा, तो मैनी टाइम्स दे गो लाइक आई थिंक, well I don't think so that this is the case, but yeah, you never know this thing, like अभी मैंने करा, it's like बीच बीच में थोड़े बहुत hesitation की whether they are confident or not, whether they are whatever they are saying, तो क्योंकि natural conversation चल रही होती है तो hesitation is must। अब hesitation की वजह से पता है क्या होता है, hesitation की वजह से it becomes difficult for you to difficult for you to have a grab on the actual conversation कि what exactly they were talking about। ठीक है, ये हो सकता है possibility। बात करते हैं थोड़ा कॉमन टॉपिक्स के बारे में। क्या है कॉमन टॉपिक्स हमारे पास? स्टूडेंट डिस्कसिंग कोर्स वर्क एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अ ट्यूटर गिविंग एडवाइस टू स्टूडेंट, अ डिस्कशन अबाउट एन एकेडमिक टॉपिक, ठीक है, देयर इज अ डिस्कशन अबाउट एन एकेडमिक टॉपिक भी हो सकता है, एंड देयर इज अ डिफरेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, दे माइट टेक अ फीडबैक, एंड दे कैन बी 2 people एज वेल, 2 नहीं होंगे, 2 to 3 होंगे ही होंगे मिनिमम लेवल पे, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज पॉसिबल क्वेश्चन टाइप जो आपको मिल सकते हैं। डिस्कशन एकेडमिक ट्रेनिंग कंटेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाई चांसेस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होता है,
मैचिंग इन्फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी है, सेंटेंस कंप्लीशन यस, टेबल नोट कंप्लीशन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, मैं इसीलिए आपको पॉसिबिलिटी कम बता दे रही हूँ ताकि आप उस पर ध्यान दो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हाई है, बहुत हाई है, इसकी पॉसिबिलिटी हाई है, इसकी पॉसिबिलिटी लो है, इसकी पॉसिबिलिटी लो है। पॉसिबिलिटी लो बोल रही हूँ मैं, कमिट नहीं कर रही हूँ कि नहीं आएगा, डोंट गो फॉर दैट। अगेन वो IELTS के एग्जामिनर है, टू ऑल द पीपल हु आर सेटिंग आउट देयर द पेपर्स एंड ऑल दैट, they might have you know that kind of a thing and they might give you these question as well जिनमें मैं लो पॉसिबिलिटी बोल रही हूँ। इसीलिए आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग ऑन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं किसी पे क्वेश्चन पे नेग्लेक्ट नहीं कर रही कि नहीं ये तो नहीं ही आएगा, डोंट डू दैट, नीदर आई एम डूइंग दैट फॉर यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू किसकी पॉसिबिलिटी हाई है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर्स व्हाट आई हैव सीन, बेस्ड ऑन ऑल द 19 कैम्ब्रिज सीरीज that has been out over there, ठीक है। तो कैम्ब्रिज सीरीज है one of the highly reliable series that you can take help of, तो उसी की वजह से talking about the question papers and all that सबको रेफरेंस में लेकर I'm telling you these things, ठीक है। So just be very careful of, कहने का मतलब है you should be having a grab on all the question types, बस किसकी पॉसिबिलिटी हाई है, कौन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे है उसको एज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तुम लोग कर लोगे, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू गाइस, ठीक है। चलो ये हो गया, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट टिप्स, एक्सपर्ट एक्सपेक्ट ओपिनियन, ओपिनियन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओपिनियन हमेशा चेंजिंग रहती है, एंड ओपिनियन में आर्ग्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, ऑफ कोर्स आर्ग्यूमेंट इज कॉमन, ओपिनियन जहां आता है वहां पे आर्ग्यूमेंट कॉमन होते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स द बेस्ट अप्रोच, तो जो भी बेस्ट अप्रोच होगा वो आप मार्क करोगे, ठीक है। इंटेंसिफायर्स पे ध्यान देना, अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू केटर टू, इंटेंसिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब मैं क्वेश्चन टाइप डिस्कस करूंगी तब मैं बताऊंगी, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरप्शंस और करेक्शंस, या करेक्शंस इज अगेन अ डिस्ट्रैक्शन, मैंने अभी बताया था, जब मैं डिस्ट्रैक्टर्स बता रही थी आपको तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिस्ट्रैक्टर्स के बारे में ध्यान देना तब उस हिसाब से ये चीज ध्यान देना कि व्हाट एग्जैक्टली यू गाइज आर केटरिंग टू, कैसे डील होगा। recognize symbol and paraphrasing for instead increase instead of grow, देखो synonym is a thing जो आपको पता होना चाहिए, मतलब there are certain thing ना जो IELTS के एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि ये चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, एंड दे आर वेरी बेसिक चीजें, मतलब ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बोल रही हूँ, लाइक अब जैसे synonyms हो गया, ठीक है। अब अगर मैं synonyms बोल भी रही हूँ, सिनोनिम्स, किन के सिनोनिम्स, देखो वो अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे थिंक वर्ड हो गया, थिंक वर्ड ऐसा है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, मतलब चाहे आप राइटिंग ले लो चाहे आप लिसनिंग ले लो, ठीक है। थिंक के सिनोनिम्स हो सकते हैं, इंटरेस्टिंग के सिनोनिम्स हो सकते हैं, इंटरेस्टिंग के हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट के हो सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज के हो सकते हैं, डिक्रीज के हो सकते हैं, ठीक। थिंग, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, इंक्रीज के हो सकते हैं, डिक्रीज के हो सकते हैं, और ब्यूटिफुल, अगेन देखो ब्यूटिफुल जो टर्म है, ब्यूटीफुल एक न्यूट्रल टर्म है, अब ब्यूटीफुल के वजह से डिपेंड करता है वो आप ब्यूटीफुल के रिस्पेक्ट से बोल रहे हो, मेल के लिए है तो अलग वर्ड्स है, फीमेल के लिए है तो अलग वर्ड्स है, चीजों के लिए है तो अलग वर्ड्स है, वी हैव डिफरेंट वर्ड्स इन इंग्लिश डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिनेरियो, हर चीज के लिए हमारे पास अलग वर्ड है। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब जाके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जाके रट डालो पूरा, नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस चीज इन वर्ड से फेमिलियर हो जाओ जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं, या आप ऐसे समझ लो कि जो आपको डे टू डे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द प्रिसाइसनेस ऑफ द डेटा, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप माउंटेन गए, आपको अच्छा लगा, आप माउंटेन गए आपको अच्छा लगा, आप वो अच्छे को आप क्या डिफाइन करोगे, आई फेल्ट गुड, नहीं, आपके नंबर कट जाएंगे देन एंड देयर। फेल्ट गुड इज नॉट अ टर्म दैट आप आइल्स के लिए यूज कर सकते हो, फॉर दैट रीजन व्हाट यू कैन गो फॉर इज कि पीसफुल हो सकता है, सीरीन हो सकता है, कैप्टिवेटिंग हो सकती है, आई कैचिंग, इंट्रीगिंग, यू फेल्ट रेजुविनेटेड, यू फेल्ट रिफ्रेश्ड, तो दीज आर द टर्म्स दैट यू कैन यूज, एंड कोई बुराई नहीं है, ये टर्म बहुत ही रेगुलर है, आई मीन बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, ठीक है। आइल्स आपसे बिल्कुल भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स वर्ड एक्सपेक्ट नहीं करता है, बट द रेगुलर वर्ड दैट वी हैव इन अ रेगुलर कॉन्वर्सेशन वो एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं एक बारी,
अब बात करते हैं पार्ट 4 के एकेडमिक लेक्चर मोनोलॉग में। इसकी अगर मैं डिफिकल्टी लेवल बताऊं तो ये मॉडरेट होता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। मॉडरेट तो कम ही बोलो, मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे डिफिकल्ट कह सकते हो। अगेन देखो ये जो टर्म्स मैं बता रही हूँ आपको कि डिफिकल्ट है, इजी है, अब देयर आर चांसेस कि जिनके लिए पार्ट 4 बहुत ईजी हो सकता है, देयर आर चांसेस जिनके लिए पार्ट 1 बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि अरे डिफिकल्ट आता है, नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी लिसनिंग एबिलिटी कैसी है, आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है, आपकी ग्रैबिंग एबिलिटी कैसी है, आप कितना ज्यादा लैंग्वेज से फेमिलियर हो, कितना ज्यादा ग्रैब है आपका उस लैंग्वेज पे, उस चीज पे डिपेंड करता है। फॉर मेनी ऑफ यू पार्ट 4 भी बहुत डिफिकल्ट नहीं हो सकता है, देयर आर चांसेस आप आराम से आंसर्स फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फीचरिंग अ यूनिवर्सिटी स्टाइल लेक्चर बाय अ सिंगल स्पीकर। द टॉपिक इज यूजुअली एकेडमिक बट डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन नॉलेज, आपको रिक्वायर नहीं होता है। अगेन एक चीज बता दूं, स्टिक टू द ऑडियो, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है तो जस्ट कीप दैट विद यू, ठीक है। आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी आंसर डिलीवर कर रहे हो, आप जो भी चीजें डिलीवर कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको प्रायर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी ऑडियो में मिलेगा उस हिसाब से आप अपने आंसर्स कैरी ऑन करोगे, ठीक है। तो आपके लिए अगर आपको लगता है ऑडियो में उसने गलत बोला है, आपके पर्सपेक्टिव से डोंट फोकस ऑन दैट। अगर उसने गलत बोला, गलत ही सही, वही गलत ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना है बस, ठीक है। चलो कंटेक्स्ट की बात करते हैं। फॉर्मल लेक्चर होता है सिमिलर टू यूनिवर्सिटी क्लासरूम सेटिंग्स, ठीक है। स्पीड एंड एक्सेंट क्या होता है, तो आपको यहाँ पे मिल सकती है फास्टर स्पीड, फास्टर स्पीच विच कम्प्लेक्स वोकैबुलरी एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको फास्टर स्पीच मिल सकती है विद कम्प्लेक्स वोकैबुलरी एंड लॉन्ग सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं। So yes, just be a bit careful. That is something I would say. ठीक है, कॉमन टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं। तो जो कॉमन टॉपिक्स होंगे वो आपके मेजरली जो थोड़े बड़े या ऐसे कह लो मैक्रो इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मैक्रो लेवल पे आपसे बात किया जाएगा, मैक्रो लेवल टॉपिक समझ लो, ठीक है। जैसे कि एनवायरमेंटल इशू हो गया, हिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च फाइंडिंग और थ्योरीज, साइंटिफिक कंसेप्ट एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स। अब देखो एक और केस सिनेरियो यहाँ पे आ सकता है जो मैं बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको। जियोलॉजी, सॉरी जियोग्राफी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सारे टर्म से आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं। अगर अब देखो, क्योंकि इन टर्म से अगर आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आइडिएशंस मिलेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पैनिक हो जाना है। देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ वर्ड्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी वाले जो वर्ड्स हो सकते हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीशीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। फिजिक्स के जो टर्म्स हो सकते हैं वो बहुत सारे लॉज के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफी के जो टर्म्स होते हैं वो बहुत सारे कंट्रीज या नेविगेशन के उसके वजह से हो सकते हैं। तो अगेन आपको जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड मिले, चाहे वो क्वेश्चन में मिले चाहे वो ऑडियो में मिले, पैनिक नहीं होना है। अगर आपको किसी वर्ड की जरूरत है, अगर एग्जामिनर या एग्जामिनर को लग रहा है कि आपको इन वर्ड की जरूरत है, वो डेफिनेटली आपको उनके डेफिनेशंस देंगे। वो कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि आपको इस बायोलॉजिकल टर्म के बारे में पता होना चाहिए, नहीं, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। रादर अगर आपकी जरूरत होगी कि आपको बताना जरूरी है क्योंकि दिस माइट बी द पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है, तो उस केस में वो आपको उसके बारे में बिल्कुल बताएंगे। बट अगर कहीं पे भी आप कोई भी
डिफिकल्ट टर्म एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो मेक श्योर इसका ध्यान देना कि एक्सपीरियंस आप भले ही करते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप जब भी उसको एनकाउंटर करो तो उसको इग्नोर कर दो। अगर उसका जरूरत होगा तो वो स्पीकर आपको डेफिनेटली उसके बारे में बताएंगे, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको उसके बारे में नहीं बताएंगे। अगेन दैट बिकम्स इररिलेवेंट टू यू, तो आपको सीधे साधे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। प्रेशर लेके बैठोगे कुछ नहीं कर पाओगे, प्रेशर नहीं लेना है, आराम से काम करो, सब होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना, अभी तो बस ये एक इंट्रोडक्शन दे रही हूं मैं। ठीक है, चलो टॉकिंग अबाउट पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, नोट, फ्लोचार्ट, टेबल कंप्लीशन, अगेन थोड़ी लो है इसकी पॉसिबिलिटी आई वुड से। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन इसकी भी पॉसिबिलिटी लो है, मल्टीपल चॉइस की पॉसिबिलिटी क्वाइट हाई है यहाँ पे। ठीक है, इसकी भी हाई टू लो कह सकते हो। ठीक है, हाई टू लो पॉसिबिलिटी कह सकते हो इनकी, और इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंटेंस कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी लो हो सकती है इन दिस पर्टिकुलर टास्क टाइप। टिप्स फॉर पार्ट 4 क्या होता है, आइडेंटिफाई की आइडियाज, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर, लिसन फॉर द ट्रांजिशन वर्ड्स। ठीक है, यूज शॉर्ट हैंड फॉर नोट, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंक्रीज एंड फॉर डिक्रीज। अगेन थोड़े बहुत यू कैन जस्ट हैव अ नोट मेकिंग टाइप पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब नोट मेकिंग की बात आ ही गई है तो लेट मी हेल्प यू विद सम ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स। अब मैं क्योंकि आपको वन बाय वन क्वेश्चन टाइप के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगी, लेट्स हैव अ क्विक लुक कि आपको वन बाय वन क्वेश्चन टाइप के हिसाब से कैसे क्या डील करना है। अब ये तो हो गया पार्ट बाइफिकेशन। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्शन। इंट्रोडक्शन बताया है कि हमारी लिसनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी कैसी चीजें काम करती हैं, एंड हाउ ऑल द पार्ट्स आर गोइंग टू वर्क अपॉन, कितने लोग होते हैं, कैसी ऑडियोज हो सकती है। सो दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी शेयर करा है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो काम ना करती हो। all the informations are relevant, each and every information is relevant and quite filtered। मैं बिल्कुल भी कोई भी फालतू चीज नहीं बता रही हूँ आपको। I know what can be your major concerns, लोगों के बहुत सारे मेजर कंसर्न होते हैं। और टॉकिंग अबाउट, देखो लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पे आप आराम से 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो अगर आपने सही स्ट्रैटेजी यूज करी तो। ठीक है, एकेडमिक वालों के लिए तो ये बहुत इजी होता है, इजी अगेन इजी नहीं होता है, मतलब इजी कहने का मतलब ये है कि आप लोग को थोड़ी लिबर्टी ना बैंड स्कोर में इसलिए मिल जाती है क्योंकि मैं कहती हूँ अगर आप 32 भी लाते हो ना तो यू आर समवट रेंजिंग इन 7 to 7.5 बैंड स्कोर समथिंग, ये 6.5 to 7 बैंड स्कोर पे आप रेंज करते ही हो 32 लाने पे भी। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप देखो 32 लाने पे आप 6.5 to 7 रेंज करो, या मैं कहती हूँ आपने एक गलत कर दिया आंसर, एक गलत होने के बाद भी आप 9 बैंड पे रेंज करते हो। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच इज ओके, आई गेट इट दैट आपका जो कंटेंट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ट्रूली गेट इट, बट इट्स जस्ट दैट कि अगेन कॉम्प्लिकेटेड तो क्या ही होता है कि अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे, बट अगर आप गलत स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो डेफिनेटली दैट्स नॉट गोना वर्क एनीवेयर। एंड अगेन बहुत सी सिली मिस्टेक्स आप करते हो विद रिस्पेक्ट टू सिंगुलर प्लूरल, विद रिस्पेक्ट टू स्पेलिंग, विद रिस्पेक्ट टू अपर केस एंड लोअर केस लेटर। ठीक है, तो वो चीजें भी आई गेट इट, थोड़ा आप करते हो तो वो चीज थोड़ा बस ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन क्वेश्चन टाइप के बारे में ना एक बारी ध्यान दे लेते हैं, एक बारी देख लेते हैं हाउ दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, चलो क्लियर। हाँ, talking about multiple choice question, ठीक है, टॉकिंग अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो क्या होता है, अभी तक हमने जो बचपन से पढ़ा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उसमें हमें यही पता चला है, हमें यही बताया गया है कि आपको क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है एंड देन आपको एक ऑडियो मिलेगी, आपको एक आंसर फिगर आउट करना होगा। ठीक है, बट चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द 3 or 4 ऑप्शन बेस्ड ऑन व्हाट यू हियर। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी होती है वो समझ लो कि एमसीक्यू सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है। हमेशा 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 कोई भी देखो एक एक मैं ना एक मैं क्या कहती हूँ, एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी में शेयर कर देती हूँ आपके साथ सो दैट आपको याद रहेगा एंड भूलोगे नहीं। ठीक है,
ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में क्या रीड करना है, देखो गो फॉर, सबसे पहले तो गो फॉर प्रॉपर नाउन, सॉरी आई एम सो सॉरी, रीड द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप जाओगे वर्ड लिमिट पे। वर्ड लिमिट अगर आप डील कर रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन टाइप से, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स पे डील कर रहे हो, फिल अप पे डील कर रहे हो, तो आपको वर्ड लिमिट देखना है। ठीक है, अगर आप एमसीक्यू देख रहे हो तो गो फॉर ऑप्शंस, कि कितने ऑप्शंस आपको मार्क करने हैं। देयर आर चांसेस कि 1 के जगह पे 2 ऑप्शंस आपको मार्क करने पड़ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो ये पढ़ना है, देखना है कि कितनी वर्ड लिमिट है, हमें जो भी वर्ड लिमिट मिली है आर वी गोइंग टू केटर टू दैट और नॉट। अगर वर्ड लिमिट 3 वर्ड्स की है तो 3 वर्ड्स 2 वर्ड 1 वर्ड तक लिखना है आंसर। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलो क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज रीड द इंस्ट्रक्शन हो गया। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट केस सिनेरियो इज रीड द क्वेश्चन। ठीक है, रीड द क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या रीड करना है, वो जो आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन रीड करने के लिए कितना मिलेगा, अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स मिलेंगे। आपको कितना टाइम मिलेगा, अगर मैं एक ऑन एन एवरेज दिमाग लगाऊं तो ये हो सकते हैं अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि ये 30 सेकेंड्स है यहाँ पे, ओके 30 सेकेंड्स मिलेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन में क्या रीड करोगे, सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन मेंशन करोगे। प्रॉपर नाउन सिर्फ रीड ही नहीं करना है, आंसर मार्क मतलब कीवर्ड्स भी मार्क करना है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कभी, जिनके नाम कभी चेंज नहीं हो सकते। जैसे नाम होते हैं ना, मेरा नाम है तान्या, उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, पैराफ्रेज नहीं कर सकते। आपका नाम होगा किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी सिटी, कंट्री, किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या कमिटी या ऑर्गेनाइजेशन के नाम होते हैं, वो हम कभी चेंज नहीं कर सकते, राइट। फॉर दैट रीजन हम उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर नाउन मिल जाता है ना, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है, क्योंकि वो तो कभी पैराफ्रेज नहीं होगा। तो जब भी स्पीकर उसके बारे में बोलेगा ना, इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू मार्क द आंसर्स। ठीक है, इन दैट केस चलो ये हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन के बाद आप एक बारी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी आइडेंटिफाई कर लोगे। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उन सब पे एज अ प्रिडिक्शन आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो, अगर एट आ गया, एट के बाद अगर ब्लैंक है तो या तो यहाँ पे प्लेस आएगा, ठीक है, या तो यहाँ पे टाइम आएगी, राइट। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। तो दिस इज व्हाट द प्रिडिक्शन दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं थर्ड चीज की। अगर आपको मिल गया डे, ठीक है, डेट, टाइम, ओके, ईयर, ये चीज है, ठीक है। ये कुछ होती है चीजें जो आप करोगे व्हेन इट कम्स टू रीडिंग द क्वेश्चन। रीड कर लिया क्वेश्चन, कीवर्ड्स मार्क कर लिए, ठीक है, मार्क कर लिए। द मोमेंट द ऑडियो स्टार्ट्स, फोकस ऑन ऑडियो, फोकस ऑन ओनली एंड ओनली ऑडियो। सिर्फ और सिर्फ आपका ऑडियो पे फोकस होना चाहिए और किसी पे फोकस नहीं होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट अप्रोच इज, वंस यू गेट द आंसर, राइट द आंसर्स, राइट द आंसर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज देम, रिवाइज देम। किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ों के बारे में गलती नहीं करनी है, तो सबसे पहले स्पेलिंग्स के बारे में गलती नहीं करनी है। स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपर एंड लोअर केस लेटर, अपर एंड लोअर केस में गलती नहीं करनी है। हमेशा याद रखना, अगर आप प्रॉपर नाउन से डील कर रहे हो तो प्रॉपर नाउन चाहे कहीं भी आ रहा हो सेंटेंस में, उसके जो इनिशियल्स होते हैं, प्रॉपर नाउन के जो इनिशियल्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल होते हैं। इनिशियल्स आर ऑलवेज कैपिटल, इनिशियल्स आर ऑलवेज कैपिटल व्हेन इट कम्स टू योर, when it comes to your proper noun, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हो, चाहे मिडिल में आ रहे हो, चाहे वो एंड में आ रहे हो, वो हमेशा प्रॉपर होंगे। ठीक है, अपर हो गया, केस लेटर हो गया। अच्छा, सिंगुलर एंड प्लूरल डेटा,
स्पीकर ने सिंगुलर, अगर स्पीकर ने सिंगुलर बोला है तो वो सिंगुलर में जाएगा, प्लूरल बोला है तो वो प्लूरल में जाएगा डेटा। कंपटीशन बोला है कि कॉम्पिटिशन्स बोले हैं, वीकेंड ट्रिप बोला है या वीकेंड ट्रिप्स बोले हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट, ये चीजें ध्यान देना। ऑल्सो इंस्ट्रक्शन में देखो एक और चीज होती है जो ध्यान देने वाली होती है, वो ये कि आपको वर्ड्स लिखने हैं या अल्फाबेट्स लिखने हैं, दोनों में डिफरेंस है। अल्फाबेट्स, जब भी आप मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन करोगे या जब भी आप वो क्वेश्चंस करोगे ना जिसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको अल्फाबेट्स ही लिखने बोला जाता है, वर्ड्स लिखने नहीं बोला जाता है। वर्ड्स आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में ही लिखने बोला जाएगा और किसी क्वेश्चन टाइप में लिखने नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी थी फॉर योर लिसनिंग जो आपको ध्यान देनी है, ध्यान से इसको पढ़ना है। क्लियर, ऑल गुड, आगे बढ़े, हो गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। ये हो गया, रीड द इंस्ट्रक्शन हो गया, रीड द क्वेश्चन हो गया, फोकस ऑन ओनली एंड ओनली ऑडियो हो गया, एंड देन राइट द आंसर्स एंड रिवाइज देम, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बाबा आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं। अच्छा, पहले एमसीक्यू के लिए जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे, देखो क्या है। रीड द क्वेश्चन ऑप्शंस बिफोर लिसनिंग, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड प्रेडिक्ट द पॉसिबल आंसर, रीड द पैराफ्रेजिंग सिनोनिम्स, आइल्स ऑफन रिफ्रेजेस द क्वेश्चन, ये चीजें अभी बताई है मैंने। अगेन एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शन, देखो ये जो एक आपके पास टिप आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, पीओई स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं। अब मैनी टाइम क्या होता है कि जब आप आंसर कर रहे होते हैं या आप एमसीक्यू कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे आपको आंसर्स डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। उस केस में क्या कर सकते हैं, देखो एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है, ये हम मेजॉरिटी उन क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो क्या करना है, क्योंकि जब आप ऑडियो सुनोगे ना, आपको अगर भले ये नहीं समझ में आ रहा है कि सही आंसर क्या होगा, लेकिन आपको ये तो जरूर पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऑप्शंस बहुत ऑब्वियस होते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उसको क्रॉस कर दोगे। तो जब आप एलिमिनेट करते जाओगे ना ऑप्शन, 4 ऑप्शन में है, 4 में से 3 एलिमिनेट करोगे तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू लैंड टू द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की, जो है फॉर्म नोट एंड टेबल कंप्लीशन। इसमें वही है सेम जो भी मैंने यूनिवर्सल फॉर्मेट दिया है, टाइम वर्ड लिमिट को देखना है, वर्ड लिमिट के बाद आइडेंटिफाई क्लूज अराउंड द ब्लैंक्स, लुक फॉर की इन्फॉर्मेशन, बी अवेयर ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, रॉन्ग स्पेलिंग 0 मार्क्स, एंड देन कॉमन ट्रैक, स्पीकर माइट चेंज द इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज 50 पाउंड्स, ओ नो आई मीन इट वॉज 15 पाउंड। मिसहर्ड वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना है, मिसहर्ड वर्ड छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू योर फॉर्म नोट एंड टेबल कंप्लीशन या फ्लो चार्ट कंप्लीशन क्वेश्चन पे जब आप डील करते हो तो, ठीक है। ये हो गई। अब हम बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं जरा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सेंटेंस कंप्लीशन टाइप के क्वेश्चन पे। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद 1 और मोर मिसिंग वर्ड, ये आपको 1 और मोर मिसिंग वर्ड मिलते हैं। प्रिडिक्ट द मिसिंग वर्ड टाइप, प्रिडिक्ट करना हर क्वेश्चन, सिर्फ इसी पे प्रिडिक्ट नहीं करना है, यू कैन प्रिडिक्ट ऑन मल्टीपल क्वेश्चन टाइप एज वेल। लिसन फॉर पैराफ्रेजिंग, द वर्ड्स इन द सेंटेंस माइट नॉट मैच द रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली, pay attention to the grammar and answer must fit in the grammatically, आंसर grammatically fit in होना चाहिए जब आप आंसर कर रहे हो। अगेन हमेशा देखो, जब भी आप कोई वर्ड लिखते हो ना फिल इन द ब्लैंक्स में, तो जब तक आप वो वर्ड नहीं लिख रहे हो तब तक तो वो एक ठीक है ब्लैंक है, बट जैसे ही आप एक वर्ड ऐड कर देते हो वो सिर्फ एक आंसर नहीं रहता है, वो आपका पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट बन जाता है। क्योंकि वो पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट बन जाता है, इसका मतलब ये है कि यू नीड टू एंश्योर कि वो जो आंसर आप जो वर्ड लिख रहे हो, उस वर्ड को लिखने के बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो ग्रामेटिकली कैसे साउंड कर रहा है, वो ग्रामेटिकली एक्यूरेट साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो now let's move ahead. common traps क्या, similar sounding word, for example effect and effect, extra information before correct answer, distractors, अगर correct answer के पहले आपको फालतू के extra information या extra चीजें मिल रहे हैं, kindly ignore that, आपके किसी काम के नहीं है, और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कूल
चलो लेट्स मूव अहेड. टॉकिंग अबाउट मैचिंग इंफॉर्मेशन. मैचिंग इंफॉर्मेशन होता है क्या है, देखो, मैच द लिस्ट ऑफ नेम्स, प्लेस और इवेंट टू द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस. आपके सामने 4 से 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे. उन क्वेश्चन में या तो लोगों के नाम लिखे होंगे, या तो उनकी लिखी हुई बुक्स लिखी होगी, या कुछ है नेम प्लेस, नेम्स लिखे होंगे, प्लेसेस लिख सकते हैं, या कुछ और भी लिस्ट हो सकती है. इसके साथ साथ आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू देम यू माइट गेट द ऑप्शंस एज वेल. स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है सॉल्व करने की, अंडरलाइन द कीवर्ड एंड लिस्ट. देखो इसमें ना थोड़ा यू कैन गो फॉर नोट मेकिंग. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना यू कैन गो फॉर नोट मेकिंग, ठीक है. जैसे कैसे मैं बताती हूँ, देखो अगेन इंफॉर्मेशन याद करना इज वेरी डिफिकल्ट, याद कर नहीं सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल जहां पे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है, वहां पे आप नोट मेकिंग कर सकते हो. मतलब इस आंसर में, अगर इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिखोगे, अभी मत लिखो. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडियो चल रही है, आपने आंसर नहीं लिखना है, आप मत लिखो आंसर, पहले नोट मेकिंग कर लो. वो 2 मिनट मिलेंगे, या और कभी कभी ऑडियो खत्म होने के बाद भी आपको टाइम मिलता है आंसर रिव्यू करने का, ठीक है, उस टाइम पे आंसर लिख लेना. तब तक क्या करना है, क्योंकि एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, तब तक क्या कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ठीक है. अब जैसे जो नाम लिखा हुआ है आपके सामने, जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो तो प्रॉपर नाउन है, नाम तो चेंज हो नहीं सकते, जगह के नाम तो चेंज नहीं हो सकते, तो वो जगह का नाम तो जरूर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बात करा दिल्ली, दिल्ली में ये चीजें होती हैं. अब आपको ऑप्शन में जाना है, आप देखो दिल्ली में क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे लिख लो क्या क्या चीजें होती है. मुंबई में ये चीजें होती है, आगरा में ये चीजें होती है. अब आप जब लिख लोगे ना, आपके पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट होगा कि आपके सामने क्या क्या दिल्ली में क्या क्या होती है. अब आप क्या करोगे, एक बार ऑडियो खत्म हो जाए, क्योंकि ऑडियो पे ध्यान देना है, एक बार ये ऑडियो खत्म हो जाएगा, ऑप्शंस पे जाओ, ये चीजें मैच कर लो. जिन ऑप्शन से जो चीजें मैच होती है उनका अल्फाबेट उठा के यहाँ पे लिख दो, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, वट एवर द अल्फाबेट यू आर गोइंग टू हैव, ठीक है. ये कर सकते हो. दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू एंड आई गेस दिस गोइंग टू वर्क. मोर आंसर ऑप्शन दैट नीडेड, सम विल नॉट बी यूज. हाँ, सम विल नॉट बी यूज, ये भी होता है. ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हमेशा आपको ऑप्शन ज्यादा, सॉरी, क्वेश्चन से ज्यादा ही ऑप्शंस मिलेंगे. क्वेश्चन से कभी कम ऑप्शंस नहीं देते हैं वो, या क्वेश्चंस के हिसाब से ऑप्शंस वो कभी नहीं देंगे, ज्यादा ही देंगे, ठीक है. वर्ड्स इन द ऑप्शंस में नॉट अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन द ऑडियो, ठीक है. चलो अब बात करते हैं लेबलिंग अ मैप, प्लान और डायग्राम. देखो इसकी तो अलग से स्ट्रैटेजी बताऊंगी मैं, ठीक है. क्यों, जब भी आप मैप प्लान लेबलिंग वाला क्वेश्चन करते हो तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि आप कैसे उसके साथ डील कर रहे हो, ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट मैप प्लान एंड लेबलिंग, देयर आर सर्टेन थिंग्स. स्ट्रैटेजी फॉर मैप लिख देती हूँ पहले तो मैं, रुको इसको ध्यान से देखना. स्ट्रैटेजी फॉर मैप्स, ठीक है. सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग, फोकस एंड इफ पॉसिबल, अगर नहीं है, ड्रॉ द डायरेक्शंस, ठीक है. सबसे पहले तो ये काम करना है तुम लोगों को. क्या है, ये हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ठीक है. ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है. ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप्स एंड नेविगेशन में इन्हीं डायरेक्शन को मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे यूज किया गया है टू नेविगेट द एंटायर मैप. क्या होगा, आपको एक मैप मिलेगा, उस मैप में कुछ ब्लैंक्स होंगे, कुछ अल्फाबेट्स लिखे होंगे, जिनमें से कुछ अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है. आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा अल्फाबेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड कहाँ पे आपका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन जाएगा. पहली चीज तो फोकस एंड ड्रॉ द डायरेक्शन. अब दूसरी चीज होती है कि दूसरे तरह का भी डायरेक्शन होता है
है। दूसरे तरह का डायरेक्शन या नेविगेशन हम किसको कहते हैं? लेफ्ट एंड राइट नेविगेशन। लेफ्ट एंड राइट नेविगेशन। लेफ्ट एंड राइट नेविगेशन का मतलब देखो, अब जब भी आप मैप प्लान लेबलिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, वहां पे क्या होता है कि आपके सामने देखो, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई मैप है आपके सामने, ठीक है। हर मैप में दे आर गोइंग टू डू टू थिंग्स, ठीक है। या तो वो एंट्रेंस मेंशन कर देंगे, ठीक है, या तो वो एंट्रेंस मेंशन कर देंगे, या तो फिर वो आपको ये बता देंगे कि आप कहां खड़े हो, लाइक दिस, दे आर गोइंग टू गिव इट लाइक दिस, यू आर हियर, यू आर हियर। नाउ तो ये होगा, या तो आपको एंट्रेंस दे देंगे या तो ऐसे मेंशन कर देंगे। तो ये दो केसेस होते हैं। बट अब आप एंटर कैसे कर रहे हो मैप में? अब आप दो तरीके से एंटर करोगे। अगर आप ऐसे एंटर कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका राइट एंड ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। अगर आप ऐसे एंटर कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। अगर आप ऐसे एंटर कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये लेफ्ट। अगर आप ऐसे एंटर कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। ये चीजें हैं, ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गई बात। एक और चीज होती है जो होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शनल प्रेपोजिशंस। क्या कहते हैं? डायरेक्शनल प्रेपोजिशंस, ठीक है। जैसे टर्म्स हो गया, near, next to, above, first right, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड राइट, ये कुछ टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब ये तो हो गया डायरेक्शनल प्रेपोजिशन होंगे, ये सारी चीजें हो गई। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर टू केटर टू दीज थिंग्स, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैप्स एंड नेविगेशन करते टाइम पे इन चीजों का खास ध्यान रखना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर, ठीक है। ये हो गए कुछ मैप्स एंड नेविगेशन के डायरेक्शंस, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर द डायरेक्ट क्वेश्चंस इन वन वर्ड और टू वर्ड्स, ठीक है। चेक द वर्ड लिमिट इफ इट सेज वन वर्ड ओनली, वर्ड लिमिट चेक करना है। फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड नंबर्स, पैराफ्रेजिंग इज की, सो या मेक श्योर। कॉमन ट्रैप्स देखो, राइटिंग मोर वर्ड्स देन अलाउड नहीं लिखना है। मिस स्पेलिंग एंड आंसर्स, इनकरेक्ट स्पेलिंग, 0 मार्क। अगर आपका आंसर कितना भी सही क्यों ना हो, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, आपको सीधा सीधा 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर उस चीज के लिए रेडी हो तो फेयर इनफ, नहीं तो अगर आपको पता है कि आप गलती कर सकते हो उस चीजों में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो इसको इंप्रूव कर लेना। क्लियर? चलो आगे बढ़े, बढ़िया। नेक्स्ट, नाउ एक्सपर्ट टिप्स फॉर ऑल क्वेश्चन टाइप। दिस इज द एक्सपर्ट टिप फॉर ऑल क्वेश्चन टाइप, ठीक है। चलो, रीड द क्वेश्चन इन एडवांस, दिस हेल्प्स यू प्रिडिक्ट आंसर बिफोर लिसनिंग। मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी में शेयर कर दिया आपको ये चीज। Stay focused, don't panic if you miss one question and move on. Recognize distractors, answers are often surrounded by misleading information, possible है. Write while listening, but don't get so focused on writing that you miss the next answer. Write while listening को ही कहते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में बहुत लीन मत हो जाना, क्योंकि नोट मेकिंग आपका कोई हेल्प नहीं करेगा अगर आप आंसर प्रॉपरली आंसर शीट में नहीं ट्रांसफर कर पाओगे तो, या लिख नहीं पाओगे तो। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि आप नोट मेकिंग को ध्यान से करो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस विद डिफरेंट एक्सेंट। आइल्स फीचर्स ब्रिटिश, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन स्पीकर्स, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि आप इन एक्सेंट से फेमिलियर हो जाओ। अब इन एक्सेंट से फेमिलियर होने का एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट लर्निंग, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट लर्निंग।
ठीक है। आप इन केस में क्या कर सकते हो, टू ऑल द बिगिनर्स आउट हियर, जो बिगिनर्स है जिनको नहीं पता है, एक्सेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीजें हो सकती है एक्सेंट में, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू मेक श्योर कि आप ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू लर्निंग कर सको। आप ट्रांसक्रिप्ट देखो, ऑडियो सुनो। ट्रांसक्रिप्ट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ द ऑडियो, ठीक है। वो रिटन फॉर्म होता है जिससे आपको जो भी थोड़ी बहुत भी प्रोनाउंसिएशन एरर्स या मिस्टेक्स या कंफ्यूजन हो रहे हैं वो आपके एराडिकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है इन दैट केस। क्लियर? सो दिस वाज द फाइनल यू कैन से टिप्स फॉर क्वेश्चंस। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर लिसनिंग, ठीक है। अब हमारा टाइम है प्रैक्टिस करने का, बट बिफोर एक क्विक सा एक वो रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्विक सा रिविजन कर लेते हैं फॉर यू गाइस। सो लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। अगर हम लिसनिंग की बात करें, ठीक है, अच्छा कुछ मिसहर्ड वर्ड्स है दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, ठीक है। कॉमन मिसहर्ड वर्ड्स दैट यू माइट फील। कॉमन मिसहर्ड वर्ड्स क्या है? 14 वर्सेस 40, 15 वर्सेस 50, ये है मिसहर्ड वर्ड्स। वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर्स, रिसीट, साइकोलॉजी, ये सब वर्ड्स पे बहुत ध्यान से सुनना है। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लाइक अफेक्ट एंड इफेक्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। एक्सेंट वेरिएशंस एंड प्रोनाउंसिएशंस, इसी के लिए बोला जा रहा था, सो दैट यू बिकम फेमिलियर विद द एक्सेंट, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो अब बात करते हैं आगे। Use capital letters for clarity and paper-based test. Anticipated answer, listen for synonyms, very important. Write and check answers simultaneously. Use elimination technique for MCQs. Follow speaker's tone and pauses. Just follow it and just focus on the words. Like, now let's talk about this. So now let's talk about this is taking care of the new topic. That ये बताता है कि नया टॉपिक आ रहा है या नया काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है आपके साथ। चलो अब बात करते हैं कि ओके फाइनल थॉट एक देख लेते हैं। समरी फॉर की टेकअवेज, सजेस्टेड रिसोर्स फॉर प्रैक्टिस एंड एनकरेजमेंट फॉर डेली लिसनिंग एक्सरसाइजेस। सो इट इज नथिंग, जस्ट मेक श्योर टू गो फॉर, अगर आपको दिक्कत हो रही है गो फॉर द ट्रांसक्रिप्ट लर्निंग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, रिविजन इज द की, रिवाइज कर लेना। देयर आर चांसेस आप अगर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में प्रॉब्लम कर रहे हो, स्पेलिंग में प्रॉब्लम कर रहे हो, तो दो शुड नॉट बी द एग्जैक्ट थिंग दैट्स बॉदरिंग यू, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिस नाउ। लेट्स हैव अ क्विक practice guys so that we can start off with our audios and the practice thing, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। Okay, chalo. For practice, get yourself prepared up. Okay. Okay. So now let's have a quick practice. So yes. So first of all, we are going to talk about part 1 and I will be telling you how to solve it with all the strategies that I have told you right now. Okay. So let's get started. Part 1. You will hear two neighbours who live in an apartment block talking about shopping for food. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hi, Shannon. How are you settling into your new flat? Really well, thanks. You look like you're going shopping. Yes, I am. My cousins are coming to stay for a couple of days and I have to cook for them. Well, there are plenty of places to buy food in Kite Place. It's the area by the harbour. Oh, okay. I'll find that on the map. Thanks. What sort of food do you need to get?
Well, neither of them eats meat, but they both like fish. Well, there's a really good fish market there. Oh, great. Where is it exactly? It's at the far end of Kite Place. So you have to go over the bridge, and then it's on the right. Okay. Is it open all day? It doesn't close until 4, but I'd recommend going earlier than that. It does run out of some things. Oh, I don't want that to happen. As long as you get there by 3:30, you should be fine. It's only 11 now, so plenty of time. Right? Do you need to buy vegetables too? I do. And I want to avoid all the plastic packaging in the supermarket. Well, there's a really nice organic shop there. Now, what's it called? It's the name of a flower. I know, it's Rose. Oh, that's a nice name. Yeah, it sells vegetables and quite a lot of other stuff. And where's that? Well, as you reach the market, you'll see a big grey building on your left. I think it used to be a warehouse. Anyway, now it's a restaurant upstairs, but the ground floor has 2 shops either side of the entrance, and it's the one on the left. That's easy enough. You can't miss it. There's also a big sign on the pavement, so you can look for that. Fine. I guess if I need anything else, I'll have to go to the supermarket. Yeah, you should be able to get everything you need. But there's a minibus that goes to the supermarket if you need it. It's purple, and the number is 289. Thanks. That's great. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. So, what do you need to get at the fish market? The salmon is always very good, and the shellfish. I'm going to make a curry, I think. And I need about 12 prawns for that. They'll have plenty of those. Okay. Have you ever tried samphire? No? What's that? It's a type of seaweed. Oh. I just asked for a handful, and you fry it in butter. It's delicious. Oh, I might try that. How do you spell it? It's SAMPHIRE. Great. It's always good to try something different. Yeah. I'll see what beans they have in the organic shop. And I think I'll get something for dessert there. How about a mango? I'm not sure. They're not always ripe. I'd prefer a melon. It's bigger too. Good idea. The owner also sells a lot of spices there that you can put in a curry, and things like coconut. Oh, that's very helpful. I'll have a look. No problem. I know bread doesn't really go with curry, but I always like to have some in case. As I said, all the bread is homemade, and there's lots of variety. I like the brown bread myself. Sounds good. They sell other things there too. Like cakes? I love chocolate cake. Well, not that. But they have a whole range of tarts, and the best are the strawberry ones. Perfect. Hopefully I won't even have to go to the supermarket. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Part 2. You will hear the organizer of a children's book festival giving some information about it on a local radio program. First, you have some time to look at questions 11 to 16.
Now listen carefully and answer questions 11 to 16. The Children's Book Festival is coming up again soon, and here to tell us all about it is the festival's organiser, Jenny Morgan. So tell us what we can expect this year, Jenny. Well, as usual, we've got 5 days of action-packed, exciting events for children, with writers coming from all over the country getting involved. Just to give you an idea of what's on offer in the workshops, first of all, there's a very special event called Superheroes. This is a chance for deaf children to share their reading experiences with author Madeline Gordon, who is herself hearing impaired. Just Do It is a practical workshop led by the well-known illustrator Mark Keane. He'll take participants on a magical journey to faraway lands with an opportunity for aspiring actors to do some role play. Count on Me is an inspiring and entertaining look at the issues of friendship for 13 to 14-year-olds. It looks at some of the friendships described in popular books and asks participants to compare these with their own experiences. Speak Up is part of a series of workshops on the subject of mental health. This is a creative writing workshop encouraging children to describe situations where young people experience loneliness. A recent survey revealed that children can be lonely even when they're at home with their families. Jump for Joy, as many of you will know, is the heartwarming best-selling story by Nina Karen about a young girl's trip to visit her relatives in India. It recently received the gold medal at the Waterford Awards. Nina will get children to celebrate the word joy by writing a poem. Sticks and Stones is the beautifully illustrated picture book for young readers about a community who organise an African Caribbean festival to help local children learn about their Jamaican roots. This will be a musical event where children will have the chance to play steel drums. This is bound to be very popular, so please book as soon as possible. Before you hear the rest of the programme, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Thanks, Jenny. That all sounds really interesting. I'm just wondering if you have a favourite book you could recommend for our readers? It's hard to choose, but Alive and Kicking is definitely worth mentioning. You won't have heard of the writer as it's her first book, which is really impressive. It's basically the teenage diary of a boy from Somalia who comes to live in the UK. It deals with the serious issue of immigration and all the challenges the boy has to face at school and with the language barrier, etc. Usually, books like this are quite sad, but this one actually made me cry with laughter. On each page, there are simple but hilarious black and white stick drawings of the boy with his friends and teachers. At the end of each diary entry, there are new English words the boy learns each day, which may help develop some children's vocabulary. I think my kids would enjoy that. What about any advice for parents on how to encourage their children to read more? Well, this is something I get asked about a lot. There are so many distractions for kids these days that it can be hard to find time for reading. One thing I'd say is to make time to sit down with your child and share books with them. A lot of parents give up reading aloud to their children as soon as they learn to read independently, but this is a mistake. It's good to read more advanced books to them as it helps to develop their vocabulary. If you don't have time for this, then let them listen to audiobooks. Often they'll want to read books they've listened to for themselves. I think it's a good idea to make a mental note of the type of books your child is reading.
Often they just read the same genre all the time, which can get a bit boring. You can introduce new authors and genres to them. Librarians should be able to help you with this. Well, Jenny, I think that's really useful. That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear a trainee science teacher called Claire talking about her practical teaching work to another trainee called Jake. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hi, Jake. How are you getting on with the practical teaching? It's harder than I expected, but I've got some great classes. How about you? Not brilliant. I'm really struggling with my Year 12 science class. Are they hard to control? Well, I don't have discipline problems as such. It's just that they don't seem to think that science has anything to do with their lives. It's depressing. They listen to what I say, and I gave them a test last week, and the results weren't too bad. But there's no real engagement. Right. And as part of my teaching practice, I have to design an experiment for them to do. I was wondering about something on the children's diets. You know, asking them to record what they eat and maybe linking it to their state of health. Let's think. So your methodology would involve the children recording what they eat, okay, but you'd also need to have access to the children's medical records, and I don't think people would be happy about that. Confidentiality would be an issue. If you could get the right data, the conclusions might be significant, but I suspect it's not going to be easy. Right. Have you thought about doing an experiment using animals? Wouldn't that be upsetting for the children? Well, the animals don't have to be harmed in any way. It could just be an experiment where they're given a certain diet and the effects are observed. Would I have to get permission to use animals? Yes, you'd have to submit an outline of the experiment and fill in a form, but it's quite straightforward. But if we found out that, say, a particular diet affects the health of animals, the same thing wouldn't necessarily be true for people, would it? No, that's true. But the findings for any experiment are going to be limited. It's inevitable. I suppose so. So, what animals could I use to investigate the effects of diet? Mice? Yes, you'd need experimental mice, ones that have been specially bred for experiments. Okay, so what will your experiment be investigating exactly? Well, something to do with nutrition. So maybe we could look at food supplements, things like extra iron and extra protein, and their impact on health. That might be rather broad. Maybe just look at the effects of one supplement, like sugar, on the health of the mice. In fact, maybe the focus could be on whether mice can control their own diet. So what happens when they have access to more sugar that they don't really need? Exactly. Do they eat it, or do they decide to leave it? Great. Then later on, you could do a follow-up experiment adding another variable. Like, you could give some of the mice the chance to be more active, running on a wheel or something, and the others just sit around and don't do much. Or I could repeat the experiment, but change the type of food I provided, or use mice with a different genetic structure. But I think your idea would be more interesting. I might think about that some more. Before you hear the rest of the discussion,
you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. So, can I talk through a possible procedure for the experiment where mice are given a sugar supplement? Sure. I did a similar experiment in college, actually. Great. So, how many mice would I need? I'd say about 12, and all young ones, not a mixture of old and young. Okay. And I'd need 2 groups of equal sizes, so 6 in each group. And how would I tell them apart? I suppose I could put some sort of tag on one group or just mark them in some way. You could use food colouring, that wouldn't hurt them. Perfect. Then each group would go into a separate cage, and one group, let's call them Group A, would be the control group. So they'd just have ordinary mouse food. I suppose you can buy that? Yes, it comes in dry pellets. And the other group would have the same as the first group, but they'd also have the extra sugar. Would you just give them straight sugar? It might be better to give them something like cereal with it. Then you'd need to weigh the mice, I should think, once a week. And you'd need an electronic balance. But we can't hold them on the balance, or it'd affect the reading. Exactly. So you need something called a weighing chamber to stop the mice from running away. It sounds complicated, but actually you can just use a plastic box with holes in the top. Okay. So once we've measured the weight gain of each mouse, we can work out the average for each group, as well as the standard deviation, and then see where we go from there. That sounds cool. I think the students will enjoy it. Yes. One thing you must remember. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You will hear part of an environmental science lecture about microplastics. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In today's lecture, I'm going to be talking about microplastics. Microplastics are tiny pieces of plastic smaller than 5 millimeters in size. Recently, there's been a greater awareness that there are large quantities of plastic waste, big and small, in the environment. The amount of plastic waste in the oceans has received widespread attention, but far less is known about the effects of microplastics in fresh water and particularly in soil. Microplastics can enter the environment via a number of different sources. Threads and microfibers detach from synthetic clothing every time they're put in a washing machine, and these find their way into the water system. Other sources include big pieces of plastic waste that are already in the environment, and these break down
into microscopic particles over a period of time. On a larger scale, factory waste is another route, as are tyres, which wear down as cars, lorries, and so on travel along road surfaces. We already understand some of the impacts of microplastics from studies involving fish and other animals. There is evidence that microplastics harm small creatures in a variety of ways, such as by damaging their mouths or by impairing their ability to feed, for example, when microplastics get lodged in their digestive system. Surprisingly, perhaps, it is likely that humans consume microplastics, as these have been detected in a wide range of food and drink products, including bottled water, as well as in water that comes direct from the tap. What's more, salt and many kinds of seafood have also been found to contain microplastics. However, it's important to underline that there is not yet conclusive proof that microplastics cause significant harm to people. In many countries, including here in the UK, there is legislation which prevents manufacturers from adding plastic microbeads to shower gels, facial cleansers, and toothpaste. It is very difficult to accurately estimate the total amount of microplastic particles in the soil, as they can be hard to detect. But we do know they are carried in the air and deposited in the soil by rain. What's more, many of the fertilizers used by both farmers and gardeners contain microplastics. A team from the Anglia Ruskin University in Cambridge has carried out a study of the effects of microplastics on the digestive tracts of earthworms. These worms, which live in topsoil, are an essential component of our agricultural system. By feeding on soil, they mix nutrients into it, thereby making it more fertile. The researchers set out to discover whether the introduction of microplastics into the soil and the subsequent ingestion of these by earthworms would impact soil quality and ultimately inhibit plant growth. The short answer was yes, it did. After placing 3 different types of microplastic particles into the soil, they planted perennial ryegrass. The particles of microplastic, which included biodegradable PLA and conventional high-density polyethylene, or HDPE, were then ingested by the earthworms in the soil. The result was that the worms lost weight rapidly. What's more, a lower percentage than normal of the ryegrass seeds germinated, and the researchers concluded that this was a direct result of the earthworms being unable to fulfill their normal role in making soil more fertile. The team also discovered that there was an increase in the amount of acid found in the soil, and this was attributed mainly to the microplastic particles from conventional HDPE plastic. The conclusions of the study make for very interesting reading. I've included the reference in the notes to give you at the end of this session. To summarize, the authors proposed the idea that we need to regard soil as we would regard any other process in nature. This means we should accept the implications of soil being dependent on decaying and dead matter constantly being passed through the bodies of earthworms. That is, when soil becomes impoverished by the presence of microplastics, not only ecosystems, but also the whole of society are negatively impacted. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. Okay, so yes, this is the entire listening module and this is how you are going to solve. And as you have already seen that this is how the questions are going to come, and also I kept on marking some of the keywords that you guys might require when it comes to your figuring out the answers. So yes, here it is. And
Yup, here are the answers if in case you want. Okay, I've already added them for you. And yes, thank you so much guys. Thank you so much for being here. It has been a wonderful session. And I hope this overall one-shot listening is going to help you in order to ace your IELTS examination. Bye-bye. Take care. See you in the next session. Bye.